ہاور نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار کر مسکراتے ہوئے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ کسی کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اعتماد اور یقین کی ایسی چٹان رکھ دو کہ وہ اس میں دب کر رہ جائے، پھر جو تم کھیلنا چاہو گے کامیابی پکے پھل کی طرح تمہاری جولی میں آ گرے گی۔ اس وقت وہ چاروں شہر کے ایک بہترین ریسٹورانٹ میں براجمان تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ریسٹورانٹ میں زیادہ رش نہیں تھا، چاروں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ چاروں نوجوان خوبصورت تھے اور ان میں ہاور دوسرا، عاطف تیسرا، سجاد جبکہ چوتھی علینا تھی۔ چاروں کی دوستی ایک کلب میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان مضبوط دوستی کو بنیاد پڑ گئی۔ ان چاروں کی جرائم کی دنیا میں آنے والی اپنی اپنی کہانیاں تھیں جو ان کے دلوں میں ہی دفن تھیں۔ وہ چاروں مختلف جگہوں پر رہتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ عام زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ملنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ ان چاروں کے چہروں پر جو شرافت کا ماسک چڑھا ہوا ہے اس کے پیچھے ان کے چہرے کیسے ہیں۔ ہاور بہت زیرک اور شاطر تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ روز مچھلی پکڑنے کی بجائے ایک بار سمندر میں چھلانگ لگا دو۔ سمندر اپنے دامن میں بہت کچھ سمیٹ کر رکھا بیٹھا ہے، اس میں سے جو حصہ ملے اس سے زندگی کا آغاز کرو۔ وہ اپنی اس زندگی سے غیر مطمئن تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ کمانے کے چکر میں تھا۔ اس کی سمندر والی بات سن کر وہ تینوں ہنستے اور کوئی بھی اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ علینا کہتی تھی کہ اب سمندر کہاں سے ڈھونڈے اور پھر کیسے اس کی تہہ میں اتر کر اپنا حصہ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تب ہاور کہتا، جس دن مجھے ایسے سمندر کا پتہ چلا ہم چاروں اس میں اتریں گے اور چاروں اپنا اپنا دامن بھر لیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب دیکھیں گے کہ سمندر میں اترنا ہے کہ نہیں۔ سجاد نے مسکرا کر کہا، اس دن میں تم میں سے کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، بس کام ہوگا اور صرف کام ہوگا۔ ہاور نے کہا۔ وہ اکثر آپس میں ایسی ہی گپ شپ لگاتے تھے، خوب کھاتے پیتے اور اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے۔ چند دن گزرے تھے کہ ہاور کا اچانک ایک بڑے بزنس مین سلطان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سلطان احمد 60 کی عمر کا ایک صحت مند شخص تھا۔ وہ بہت اچھی یادداشت اور زبردست سوچ کا حامل تھا۔ جب اس کی سوچ کے گھوڑے دوڑتے تو پھر بہت دور تک نکل جاتے تھے۔ جب کسی پر اعتبار کرنے لگ جاتا تو لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، اور جب اس کے کان پر دل نہیں جمتا تو پھر چاہے وہ سونے کا بن کر آ جائے وہ اپنی سوچ کو نہیں بدلتا۔ اسے یوں کہہ لیں کہ وہ اعتماد کرتا تھا یا پھر بالکل نہیں کرتا تھا۔ سلطان بالخصوص اپنے کسی ڈرائیور سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہم یا کوئی نفسیاتی گرا تھی کہ اس کا ڈرائیور گاڑی ٹھیک نہیں چلانا جانتا۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا جب وہ کہیں جا رہا ہوتا تو اس پر خوف سوار رہتا کہ یہ ڈرائیور کسی کے ساتھ گاڑی ٹکرا دے گا۔ اس نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے وہ آئے روز اپنا ڈرائیور بدل دیتا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اس کے پاس ڈرائیوروں نے نوکری کرنے کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس دن وہ ڈرائیور کے بغیر خود ہی کار چلا رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خوف اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس بات سے اسے اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ رش میں گری ہوئی گاڑی بند ہو گئی۔ اس کے لیے وہ گاڑی چلانا دوبارہ ہو گیا۔ اس کے ذہن کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جس جگہ اس کی گاڑی رکی تھی وہ گاڑی کو 1 انچ آگے لے جانے میں ناکام رہا اور اس کے پیچھے گاڑیوں نے ہارن دے دے کر چلانا چیخنا شروع کر دیا۔ اس دوران رکشے میں بیٹھے ہاور نے ڈرائیونگ سیٹ پر گھبرائے اور پسینے میں شرابور شخص کو دیکھا تو اس نے رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور جلدی سے سلطان احمد کی کار کے پاس جا کر اپنی انگلی سے شیشہ بجایا۔ سلطان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور شیشہ نیچے کر لیا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سر آپ کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ ہاور نے شائستہ لہجے میں دریافت کیا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گاڑیوں کے ہارن چیخ رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہاور نے سمجھا کہ شاید اس شخص کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاور نے دروازہ کھولا اور بولا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو سر گاڑی میں چلاؤں؟ یہ سنتے ہی سلطان احمد ساتھ والی سیٹ پر ہو گیا اور ہاور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس رش میں ہاور پرسکون انداز میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا آگے تک لے گیا اور مناسب رفتار سے اسی جگہ سے دور گاڑی نکلی تو ہاور نے پوچھا، سر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں گے؟ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم گاڑی چلاتے رہو۔ یہ کہہ کر سلطان احمد نے اپنی سوسائٹی کا پتہ بتا دیا۔ سلطان احمد نے پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ بھرے اور ہاور کی ڈرائیونگ کا جائزہ لینے لگا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ سلطان احمد کو ہاور کی ڈرائیونگ میں کوئی نقص نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی طرح کا خوف محسوس ہوا۔ دراصل ہاور نے گاڑی کی رفتار مناسب رکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مہنگی کار زندگی میں پہلی بار چلا رہا، اس لیے وہ محتاط تھا۔ گاڑی اس کی سوسائٹی میں داخل ہو گئی جہاں سلطان کی رہائش گاہ تھی۔ وہ پوش علاقہ تھا۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے سلطان احمد کے کہنے پر وہ خوبصورت بنگلے کے سامنے ہاور نے کار روک دی۔ وہ بنگلہ گلی کے کارنر پر تھا۔ ایک طرف گلی اور دوسری طرف کمرشل اسٹریٹ تھی جہاں مختلف کاروباری شاپس دکھائی دے رہی تھی۔ ہاور نے گاڑی کا ہارن دیا تو تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور کار اندر چلی گئی۔ دونوں گاڑی سے اترے اور ہاور نے کہا، سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو مجھے جانے کی اجازت ہے۔ سلطان نے ایک نظر ہاور کی طرف دیکھا اور بولا، اندر آ جاؤ، چائے پیتے ہیں۔ ہاور نے رسمی طور پر انکار کیا، سر چائے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل میں رکشے میں بیٹھا تھا اور آپ کی طبیعت دیکھی تو فوراً آپ کی طرف بڑھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کو شاید دل کی کوئی تکلیف ہو۔ میرے دل، دماغ اور گردے سب ٹھیک ہیں، اندر آ جاؤ، سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھا۔ ہاور ہولے سے مسکرایا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ سلطان نے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ملازم کو آواز دی اور اسے چائے لانے کے لیے کہا۔
हावर ने दाएं बाएं जायजा लिया। बैठ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान ने सोफे पर बैठते हुए उससे कहा। मेरा नाम हावर है। नाम बताते हुए वो भी सामने विराजमान हो गए। क्या करते हो? हावर ने एक लम्हे को सोचा कि वो क्या जवाब दे, फिर एकदम से कहा, फिलहाल जॉब की तलाश में हूँ। तालीम कितनी है? एमए इकनॉमिक्स हूँ, हावर ने इत्मीनान से झूठ बोलते हुए कहा। सुल्तान ने तारीफी निगाहों से उसकी तरफ से कहा, मेरे पास जॉब करोगे? मुझे तो जॉब करनी है, आपके पास हो या किसी के पास, हावर ने जवाब दिया। इस दौरान मुलाजिम चाय ले आया और दोनों के सामने चाय रखकर चला गया। कुछ देर तक सुल्तान चाय के घूंट भरता रहा, फिर बोला, जो नौजवान अपने किसी काम से जा रहा था और मुझे तकलीफ में देखकर अपना काम छोड़कर मेरे पास आ गया, मेरा तजर्बा कहता है कि वो नौजवान इस लायक है कि इस पर भरोसा किया जाए, और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हावर ने ममनून निगाहों से उसे देखा। सर, ये आपकी मेहरबानी है। दरअसल मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए। इसके बाद चचा ने पाला और पढ़ाया। जब चची ने घर से निकाल दिया तो हर जगह अपना ये तलाश कर रहा हूँ। हावर ने सुल्तान के अल्फाज सुने तो इसके दिल में मजीद अपनी हमदर्दी पैदा करवाने के लिए उसने नई कहानी गढ़ दी। मुझे सुनकर अफसोस हुआ कि तुम लावारिस हो। खैर, तुम मुझे अच्छे लगे हो, बिलखसूस तुम्हारी ड्राइविंग से बहुत खुश हूँ। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। काम क्या होगा सर? जो मैं कहूँगा। मेरी गाड़ी की ड्राइविंग हो सकती है, मेरे ऑफिस का काम हो सकता है, और कोई काम भी हो सकता है। मैं तुम्हें अच्छी तरह दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे काम और इज्जत मिल रही है तो सर एतराज़ क्यों करूँगा? हावर दिल ही दिल में खुश हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि पहली मुलाकात और वो भी अचानक सरेरा कि सुल्तान अहमद के एतमाद को फूल इस पर निछावर करने लगा है। मेरी बीवी और बच्चे दुबई में रहते हैं, वहाँ हमारा कारोबार है। इस कमर्शियल सड़क पर एक शानदार और खूबसूरत प्रॉपर्टी ऑफिस है। प्रॉपर्टी के इस कारोबार को मेरा बहनोई देखा करता था, वो भी दुबई चला गया है और अब वो ऑफिस बंद है। चंद दिनों में दुबई जा रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी की सालगिरह है। सालगिरह मनाने के बाद मैं और मेरी बीवी वापस आ जाएंगे और फिर प्रॉपर्टी का ऑफिस मैं खोलूंगा और कारोबार शुरू करूंगा, सुल्तान अहमद ने बताया। हावर खामोशी से सुन रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद सुल्तान ने फिर कहना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी सर। मुझे दो चीज़ों से नफरत है, एक झूठ और दूसरी ये चीज़ जब किसी पर अंधा एतमाद करे तो दूसरा इस एतमाद को तोड़ दे। मेरे लिए ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जिनकी सज़ा मेरे नज़र में बहुत कड़ी है। सुल्तान के लहजे में एकदम तगैर आ गया। वो बहुत संजीदगी में डूबे हुए लहजे में कह रहा था, मुझे यकीन है कि तुम हम दर्दाना दिल के मालिक हो। मेरे साथ ना कभी झूठ बोलोगे और ना मेरा एतमाद तोड़ोगे। सर, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझ पर एहसान किया और पहली मुलाकात में रोजगार भी दे दिया। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आज ही सांस तक आपका एतमाद टूटने नहीं दूंगा। हावर ने नजरें झुकाकर एहसानमंदी से कहा तो इसके लबो लहजे ने सुल्तान को भी पूरी यकीन कर दिया कि इसने ना सिर्फ सही पहचाना बल्कि इससे हावर की सूरत में बेहतरीन नौजवान मिल गया है। सुल्तान जहरीला मुस्कुराया, इसे खुद परश करने लगा कि वो 60 साल की उम्र में भी ये जांच लेता है कि इसके सामने खड़ा शख्स सही है या गलत। सुल्तान अहमद की गर्दन कुछ चक्कर सी गई। इसे अपने माजी में लिए हुए फैसले याद आ गए। जब इसने किसी गलत चीज़ को गलत कहा, दूसरों ने सही करा, तो वक्त ने साबित कर दिया कि सुल्तान अहमद की राय इसके बारे में बिल्कुल सही थी। सुल्तान को अपने मिलने वालों से यही चीज़ मुमताज़ करती थी कि वो एक नज़र में सामने वाले को जांच लेता था। इसलिए सुल्तान ने सोचा कि काश इस वक्त इसके पास मिलने वाले कुछ मौजूद होते तो इसकी दानिशमंदी देखकर जरूर इसकी तारीफ करते। वो ये देखते कि सुल्तान बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन इसकी सोच और बंदे के अंदर देखने की सलाहियत आज भी जवान है। सुल्तान अहमद को तासुफ हुआ कि इसके पास कोई और मौजूद नहीं था, वरना इसे अपनी तारीफ में बहुत अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते। लेकिन सुल्तान ये नहीं जानता था कि इसके सामने बैठा हुआ नौजवान सवासेर है जो मासूमियत का मास्क चढ़ाए इसके दिल में अपनी जगह बना रहा है, जबकि सुल्तान अपने आप पर रश करने पर मजबूर हो गया। इस मुलाकात के बाद दूसरे दिन सुल्तान के कहने पर हावर इसके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल हो गया। अब हावर फिलहाल इसके ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था। सुल्तान इसकी मोहतात ड्राइविंग से बहुत मुतासर था। दरअसल हावर इसकी नफ्सियात समझ गया था कि सुल्तान मोहतात ड्राइविंग पसंद करता है। जब ड्राइवर दूसरी गाड़ी से आगे निकलने के लिए तेजी से ओवरटेक करता तो सुल्तान डर जाता और इसे ड्राइविंग नापसंद आ जाती। हावर ने ऐसी गलती नहीं की थी। वो मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाता। इसकी कोशिश होती कि वो किसी कार को ओवरटेक न करे और यूँ सुल्तान इसकी ड्राइविंग से खुश था। इस रोज़ भी सुल्तान बाहर जाने की तैयारी में था। इसने हावर को बताया कि वो हफ्ते के लिए बच्चों के पास जा रहा है। वापसी पर बीवी इसके साथ होगी और वो प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करेगा। सुल्तान इसे अपना ऑफिस दिखाने ले गया जो बहुत ही खूबसूरत था। सुल्तान अहमद वसी पैमाने पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। बातों के दौरान ऐसे ही दराज में एक विजिटिंग कार्ड सुल्तान के हाथ में आ गया। इस कार्ड को देखते हुए सुल्तान ने हावर को बताया कि ये शहर के किसी बड़े बिजनेसमैन का विजिटिंग कार्ड है। इसने कुछ अर्सा पहले एक रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट की कामयाबी पर इसकी दूसरी ब्रांच इस इलाके में खोलना चाहता था और इसकी कोठी को देखकर इसने इसके बहनोई से जो पहले इस जगह का कारोबार करता था मेरी कोठी को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैंने साफ इनकार कर दिया था। आपने उनसे मुलाकात के बाद इनकार किया था। हावर ने पूछा, मुझे इसके साथ बैठने की क्या ज़रूरत थी? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे से मिले भी नहीं। इसने मेरे बहनोई से बात की थी और वो पैगाम मुझ तक पहुंचा गया था। मैंने बहनोई के जरिए इनकार भेज दिया। हालांकि मेरा बहनोई कहता था कि मैं वो कोठी बेच दूँ, उसे वो जगह बहुत पसंद आई है और वो अच्छे दामों खरीद लेगा, लेकिन मैंने इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी।
सुल्तान ने बेपरवाही से जवाब दिया और हाथ में पकड़ा विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे से उठकर बाहर निकल गए। हावर ने जानबूझकर कार की चाबी कमरे में ही छोड़ दी थी। बाहर निकलकर हावर को एकदम चाबी का ख्याल आया और वो चाबी लेने अंदर चला गया। फिर हावर ने डस्टबिन से वो कार्ड उठाकर अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया। इस दिन हावर ने आतिफ को फोन करके कार्ड व्हाट्सएप करके कहा कि वो नजीब खान के बारे में मालूमात ले और ये जानने की कोशिश करे कि वो कैसा बिजनेसमैन है और इसकी कमजोरी क्या है। मालूमात हासिल करने के लिए आतिफ ने जॉब की गर्ज से इसके ऑफिस का रुख किया। जॉब तो नहीं मिली मगर कुछ ना कुछ इसके बारे में खोज लगा लिया। इसके बाद अलीना गई तो इसने अपना हुलिया बदल लिया। इसने सर से गर्दन तक स्कार्फ लपेट लिया और आंखों में नीले लेंस डाल ली। नजीब खान की कंपनी ने जॉब के लिए कोई इश्तिहार नहीं दिया था। जब आतिफ नौकरी के लिए गया तो इसे नजीब खान ने चलता कर दिया, जबकि अलीना को अंदर बुला लिया गया। पहले तो इसने अलीना को अच्छी तरह से जायजा लिया। अपनी हरीस नजरों से इसने अलीना को टटोला और बोला, आप जॉब के लिए आई हैं? जी सर, अलीना बोली। मेरी कंपनी में कोई लड़की इस तरह स्कार्फ लपेट कर नहीं आती। नजीब खान ने कहा, क्या आपको ये पसंद नहीं है? सर, मुझे छुपा हुआ हुस्न पसंद नहीं। नजीब खान ने इसकी नजरों में अपनी निगाहें पेवस करते हुए कहा था कि इसका फोन बाज उठा। वो कॉल ऐसी थी कि नजीब खान को फौरन जाना पड़ा। इसने कोट पहनते हुए कहा, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल आ गई है, अगर मैं ना गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या तुम कल 12 बजे ऑफिस आ सकती हो? बिल्कुल आ सकती हूँ, अलीना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं कल 12 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, नजीब ने कहते हुए एक मुस्कुराहट बखेरी। नजीब खान उस वक्त चला गया। इसके जाने के बाद इस्तकबालियों पर बैठी लड़की के पास जाकर अलीना ने इधर उधर की बातें करती रही। फिर स्कार्फ का जिक्र छेड़ दिया और इसके जिक्र में इसने जहां और बातें जान ली वहां इसके इल्म में यह भी बात आई कि नजीब खान 3 शादियां कर चुका है। हुस्न परस्त और दिल फेंक इंसान था। सारी रिपोर्ट हावर तक पहुंच गई। हावर ने आतिफ और सज्जाद को ताकीद की कि वो इस वक्त शेयर ना करें जब तक वो उनसे मिल नहीं लेता। सुल्तान की टिकट कंफर्म हो गई। इसने हावर को अपने पास बुलाकर कहा, हावर तुम मेरे साथ 12 दिन से हो। इन 12 दिनों में मैंने तुमको इंतहाई बाइलाक और सादतमंद पाया है। मैंने तुमको अपने तौर पर आजमाया भी है जिसमें तुम कामयाब रहे हो। मैं तुमसे बहुत मुतमईन और खुश हूँ। मैं आज 1:30 बजे की फ्लाइट से चला जाऊंगा। तुम मेरे पीछे सर्वेंट क्वार्टर की बजाय यहाँ सुनो और इस घर की देखभाल करना। जो आपका हुक्म सर। हावर ने इस बात में सर हिलाया। हावर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि सुल्तान ने इसे कब किस तरह आजमाया था और किस वक्त अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया था। खाना पकाने के लिए मुलाजिम है, गेट पर चौकीदार है। मुझे यकीन है तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। सर, आप खाना पकाने वाले को छुट्टी दे दें, चौकीदार गेट पर रहेगा क्योंकि मैं खुद खाना अच्छा बना लेता हूँ और इसका मुझे शौक भी है। हावर ने कहा, तुमने पहले नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खा लेता। हाँ, सुल्तान अहमद खुश हो गया। सर, वापसी पर मैं ही खाना बनाऊंगा। हावर मुस्कुराया। यूं घर के अंदर के मुलाजिम को छुट्टी मिल गई और गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया। 1:30 बजे की फ्लाइट से सुल्तान अहमद बाहर चला गया। सुल्तान के जाने के बाद हावर ने अपने तीनों दोस्तों को उसी रेस्टोरेंट में बुला लिया और एक बार फिर एक दूसरे के सामने ब्राजमान थे। हावर इन तीनों की तरफ देखकर बोला, मैंने एक दिन कहा था ना, जिस दिन मुझे समंदर का पता चल गया मैं तुम तीनों को बताऊंगा, फिर हम एक साथ समंदर में उतरकर अपनी किस्मत तलाश करेंगे। हाँ, कहा था, मुझे याद है। आतिफ बोला, मैंने ये भी कहा था कि दूसरे पर एतबार ऐसा बना लो कि वो इसमें दब जाए। मैंने ऐसा ही किया कि वो बेचारा मेरे एतबार तले दब गया। हावर ने जाम से कहा, तुम ऐसा करने का माहिर हो, ये मानना पड़ेगा। आतिफ बोला, अब हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में 4 किरदार होंगे। एक किरदार सुल्तान अहमद का, दूसरा प्रॉपर्टी डीलर का, तीसरा सुल्तान अहमद के नौकर का, चौथा इसकी जवान बीवी का होगा। हावर ने कहा। वो तीनों नजरें जमाए हावर की तरफ देख रहे थे। अलीना ने पूछा, इस खेल का मकसद क्या होगा? मतलब ये कि तुम हमें जो कहते थे हम करते रहे। नजीब खान के बारे में मालूमात हासिल की और चुप हो गए क्योंकि तुमने कहा कि कोई भी सवाल नहीं करना, बस वो करना जो तुम कहोगे। हावर मुस्कुराया। इस खेल में 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ तो कहीं नहीं गए। इस खेल का राइटर और डायरेक्टर मैं हूँ। तुम तीनों अपनी जानदार अदाकारी से बिजनेसमैन नजीब खान को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। हावर का लहजा मानियस हो गया। हमें करना क्या होगा? सज्जाद ने पूछा। ये मत पूछो कि हमें करना क्या होगा, बल्कि ये कहो कि हम सब इस खेल में अपना अपना किरदार निभाने को तैयार हैं। हावर बोला। इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अलीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसके हाथ पर तीनों ने अपना हाथ रख दिया। वो तीनों तैयार थे। हावर ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, इस खेल में एतमाद से भरपूर अदाकारी ही हमें कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है, इसलिए किसी मौका पर अपना एतमाद खोने की कोशिश मत करना। हावर ये कहकर चुप हुआ और कुछ सोचने के बाद बोला, गेट पर खड़े चौकीदार का क्या करे? इसे 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दो। आतिफ बोला, इसने अगर सुल्तान अहमद या किसी और से रब्ता कर लिया तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। हावर मुसलसल सोचते हुए बोला, तो फिर क्या करे? अलीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी मेरे साथ चलो। हावर उठ खड़ा हुआ। वो चारों उसी वक्त बंगले पर पहुंचे। चौकीदार ने जो ही गेट बंद किया, अकब से हावर ने इसे काबू कर लिया। हावर ने रास्ते में उनको समझा दिया था कि करना क्या है, इसलिए एकदम से उन्होंने चौकीदार को उठाया और दबोच कर अंदर ले गए। अंदर एक बेसमेंट थी, वो उसे वहां ले गए। रास्ते से उन्होंने एक जंजीर और ताला खरीदा था जो अलीना ने पकड़ कर रखा था। बेसमेंट में ले जाकर उन्होंने चौकीदार की टांग पर जंजीर के एक हिस्से को लपेट कर ताला लगा दिया और दूसरा हिस्सा सतून के गिर्द लपेट कर वहां भी ताला लगा दिया। अब चौकीदार कमरे के इतने हिस्से में फिर सकता था कि वो दरवाजे तक नहीं जा सकता था।
बाथरूम भी करीब था, इसलिए वो आसानी से अंदर जा सकता था। ये आप क्या कर रहे हैं? चौकीदार जो मुसलसल मज़ाहमत कर रहा था, इसने पूछा। बस चुप रहो, तुमको 3 वक्त का खाना मिलता रहेगा, जल्द ही तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हावर ने कहा, और वो बाहर निकले। हावर ने दरवाज़ा बाहर से मुकफ़िल कर दिया। जब तक ये खेल हम खेलेंगे, हमें चौकीदार की तरफ से कोई डर नहीं होगा। हावर बोला। अब चारों खेल खेलने के लिए तैयार थे।